सीजेआई गवई ने भारतीय न्याय प्रणाली पर खुलकर दिया बड़ा बयान। This must change if you want to keep our best minds or bring them back. We must build nurturing academic environments, offer transparent and merit-based opportunities, and most importantly, restore dignity and purpose to legal research and training in India. गंभीर चुनौतियों से जूझ रही भारतीय न्याय व्यवस्था, बड़े सुधार की जरूरत। मुकदमों में देरी कभी कभी दशकों तक चलती है। हमने ऐसे भी मामले देखे हैं जहां बेकसूर व्यक्ति वर्षों तक जेल में रहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई ने आज एक बड़ा बयान दे दिया और ये कहा कि भारतीय न्याय प्रणाली आज बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है और इनमें बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है। उन्होंने ये बात हैदराबाद के जस्टिस सिटी स्थित नालासार लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। मुख्य न्यायाधीश गवई ने छात्रों को सलाह दी कि वे विदेश में स्कॉलरशिप के जरिए उच्च शिक्षा प्राप्त करें ताकि परिवार पर आर्थिक बोझ ना पड़े। उन्होंने कहा कि हालांकि मैं मानता हूं कि हमारी न्यायिक व्यवस्था को ठीक करने की बहुत जरूरत है, फिर भी मुझे उम्मीद है कि हमारे देशवासी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे आएंगे। सीजेआई गवई ने यह भी कहा कि हमारा देश और न्यायिक व्यवस्था दोनों ही गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। मुकदमों में देरी कभी कभी दशकों तक चलती है। हमने ऐसे भी मामले देखे जहां कोई व्यक्ति वर्षों तक जेल में रहने के बाद बेकसूर साबित हुआ। हमारे बेस्ट टैलेंट्स इन समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं। क्या कुछ और कहना है सीजेआई गवई का, एक बार आप खुद सुनिए। There are few structured pathways for post-doctoral research, limited funding for early career scholarships, and opaque hiring processes that discourage even the most committed. This must change if you want to keep our best minds or bring them back. We must build nurturing academic environments, offer transparent and merit-based opportunities, and most importantly, restore dignity and purpose to legal research and training in India. It is not just enough to celebrate India's legal legacy. We must invest in its future. And that future depends on how we treat our researchers, our young faculty and lawyers, our returning scholars. We need to invest not only in institutions, but in imagination. In mentorship programs, research fellowships, policy labs, local innovation ecosystems, and ethical not only in institutions, but in imagination. In mentorship programs, research fellowships, policy labs, local innovation ecosystems, and ethical workplaces that make our best minds want to stay or return. It is also important because our country and our legal system are facing unique challenges. Delays in trials can sometimes go for decades. We have seen cases where someone has been found innocent. After spending years in jail as an under trial, our best talent can help us resolve the problems that we are facing. To borrow the words of Judge S. Rakoff, a senior federal district judge in the United States, from his book, Why the Innocent Plead Guilty and the Guilty Go Free, and other paradoxes of our broken legal system. Even though I conclude that our legal system is in bad need of fixing, I remain cautiously optimistic that my fellow citizens will rise to the challenges. Before I conclude, let me offer you my final words of advice. Not as a chief guest, but as a guardian. Never ignore the 5 things in life: friends, family, books, hobbies, health,
and imagination. Friends and family are your anchor. They support you even in the darkest of times, often without asking for anything in return. When ambition tires you out or the world turns indifferent, तो जैसा कि आपने सुना कि सीजेआई गवई ने अभ्यर्थियों से गुजारिश भी की कि वे अपने माता पिता के पैसों की बजाय स्कॉलरशिप पर विदेश जाए। इस खास मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट के जज पीएस नरसिम्हा, तेलंगाना हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजॉय पाल भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान सीजेआई गवई ने कानूनी पेशे से जुड़ी मानसिक चुनौतियों, अकेलेपन और संरचनात्मक असमानताओं को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि ये पेशा अक्सर अकेलापन देने वाला और भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो सकता है। काम के घंटे भी लंबे हो सकते हैं, अपेक्षाएं बहुत अधिक हो सकती है और आप केवल सफल होने का नहीं बल्कि सफल दिखने का भी दबाव महसूस करेंगे। कई लोग अपनी परेशानियां छिपाते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ऐसा कुछ भी ना करें। इसे लेकर आप खुलकर बातचीत करें। अब ऐसे में आपको बता दें कि सीजेआई ने जो ये बयान दिया, इसके बाद लोगों के तमाम तरीके के रिएक्शन सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के बयान से अब विपक्ष की नींद उड़ गई होगी, विपक्ष को अब ये बात रास नहीं आ रही होगी। कुछ लोग ने लिखा है कि विपक्ष इस स्टेटमेंट के बाद उनकी नींद खराब हो जाएगी। सिब्बल सिंघवी की दुकान अब खतरे में आ चुकी है। इसी तरीके से एक और व्यक्ति जो है वो भी इस मामले को लेकर इसी तरीके से टिप्पणी करते नजर आए। उसके बाद वो लिखते हैं कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई ने भी खुद कह दिया है कि भारत की न्याय व्यवस्था को तत्काल सुधार की जरूरत है। मुकदमे दशकों से लटकते रहते हैं। अब मोदी शाह को कदम उठाना ही होगा। जिनका इकोसिस्टम रो रहा है, रोने दो। जनता को न्याय चाहिए, ड्रामा नहीं। यानी लगातार लोग जो है उनके इस बयान की सराहना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि खुलकर एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया। खुद चीफ जस्टिस हैं और उन्होंने फिर भी ये बात मानी है कि जुडिशरी में एक बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। समय की मांग है कि एक बड़ा सुधार जो है इसमें होना चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि इनके द्वारा ये जो इतनी बड़ी टिप्पणी की गई है इससे विपक्ष बौखला जाएगा और अब इस मामले पर भी जमकर बयानबाजी आप देखने के लिए मिलेगी। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस तरीके के बयान समय समय पर दिए तो जाते हैं लेकिन जुडिशरी में सुधार नहीं हो पाता है। हाल ही फिलहाल में आपने देखा कि किस तरीके से जुडिशरी और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के काम को लेकर तरह तरह की बयानबाजी की गई। इस तरह के भी बयान दिए गए थे कि अगर सारे फैसले कोर्ट ही लेगा तो फिर संसद में ताला लगा देना चाहिए और विपक्ष ने इसे लेकर काफी बड़ा मुद्दा बनाया था। इस मामले को लेकर जमकर बयानबाजी की गई थी और इस मामले पर फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी खुलकर बोले थे। उन्होंने यह जो पूर्व जज थे यशवंत, उनका भी नाम लिया था और कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पूरे मामले पर जवाबदेही होना चाहिए और उनके से जुड़े हुए जो मामले हैं वो जज है तो क्या हुआ, लेकिन लोगों को सच्चाई जानने का पूरा हक है। और अब सीजेआई गवई ने जिस तरीके का बयान दे दिया है ये विपक्ष की नींद और होश दोनों उड़ा देगा। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है। सीजेआई गवई का आपने पूरा बयान सुना है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।